Morning students, welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video we were discussing the chapter named My Dearest Lizzie. Let's continue with the chapter. Before Before starting the remaining portion of the chapter, I would like to give you the brief of the story. So, in the story, we read that Mrs. Bennet was very much desperate to get her daughters wedded to very good mans. In this regard, she sent Jane to Mr. Bingley's house, and while coming to the Bingley's house, she came through heavy rainfall and she got herself wet in the rainfall, and due to this she got ill, and Mrs. Bennet received a note in which her illness was mentioned. Now Elizabeth cannot control herself and cannot stop her to meet Jane, so she pursued toward the house of Mr. Bingley. There she reached by walking a long distance of 3 miles, and let's continue now with the remaining portion. Her inquiries after her sister were not very favorably answered. Miss Bennet had slept ill and though was very feverish and not well enough to leave her room. तो जब एलिज़ाबेथ वहाँ पहुँचती हैं तो वो पूछती हैं अपने सिस्टर के बारे में, और उनका जो रिप्लाई उन्हें मिलता है वो बहुत ही फेवरेबल नहीं होता है. उन्हें पता चलता है कि मिस बेनेट जो हैं सोई हुई हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्हें फ़ीवर है और उन्हें इतना फ़ीवर है कि वो अपना रूम भी छोड़ के नहीं आ पा रही हैं. Elizabeth was glad to be taken to her immediately, and Jane, who had not been withheld by the fear of giving alarm to inconvenience from expressing in her note how much she longed for such a visit, was delighted at her entrance. और जब एलिज़ाबेथ वहाँ पहुँचती हैं तो एलिज़ाबेथ को देख कर के जेन बहुत ही खुश होती हैं, और she was not equal, however, too much conversation, and when Miss Bingley left them together, could attempt little beside expressions of gratitude for the extraordinary kindness she was treated with. और जब मिस बिंगले वहाँ से चली जाती हैं, मिस बिंगले जो हैं वो एलिज़ाबेथ को रूम में लेकर के जाते हैं जेन के, और फिर कुछ देर बाद वहाँ से वो चली जाती हैं. जब वो चली जाती हैं तो वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हैं जेन एलिज़ाबेथ के लिए, और उन्हें बहुत अच्छा फील होता है अपनी सिस्टर को वहाँ देख करके. एलिज़ाबेथ अटेंडेड टू हर साइलेंटली, एलिज़ाबेथ उनको साइलेंटली अटेंड करती हैं, दैट मीन्स चुपचाप उनकी देखभाल करती हैं. व्हेन ब्रेकफास्ट वाज ओवर दे वर जॉइंड बाय द सिस्टर्स. जब ब्रेकफास्ट ओवर हो गया तो वो सारे लोग, मिस्टर बेनेट की सारी फैमिली आकर के एलिज़ाबेथ और उनके सिस्टर जेन को ज्वाइन करते हैं. एंड एलिज़ाबेथ बिगन टू लाइक देम हरसेल्फ, और एलिज़ाबेथ को भी अब वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं. व्हेन शी सॉ हाउ मच अफेक्शन एंड सॉलिसिट्यूड दे शावर्ड फॉर जेन, जब वो देखते हैं कि वो एलिज़ाबेथ के उनकी सिस्टर जेन के लिए वो लोगों का बिहेवियर, उनका केयर और उनका हेल्पफुल अटेंशन इतना ज़्यादा है कि वो देख करके वो उन्हें पसंद करने लगती हैं. द apothecary came and have examined his patient, said as might be supposed that she had cough, violent cold, and they must endeavour to get the better of it, advised her to return to bed, and promised her some draughts. Draughts means
medical drinks, that means kadha or like kadha like things, and tea. So doctor advised Jane to have some kadha and tea so that she could get well, and she was suffering from very violent cold. The advice was followed readily, for the feverish symptom increased and her headache acutely. अब क्या होता है कि उनकी जो फेवरिश सिम्टम है जेन के वो बढ़ जाते हैं और उनका हेडेक भी बहुत बढ़ जाता है, और जो एडवाइस डॉक्टर ने दी थी वो तुरंत ही बहुत ही इमीडिएटली फॉलो की जाती है. एलिजाबेथ डिड नॉट quit her room for a moment, nor were the other ladies often absent. एलिजाबेथ जो है वो 1 मिनट के लिए भी रूम से नहीं जाती थी, कहीं भी नहीं गई, वो कंटिन्यू रूम में रही. Nor were the other ladies often absent, the gentlemen being out, they had in fact nothing to do elsewhere. और जो अदर लेडीज़ थी मिस्टर बिंगले की फैमिली की, वो ऑफेंट मतलब बाहर चली जाती थी समटाइम्स के लिए, बट जो जेंट्स थे, मेंस थे, वो आउटसाइड ही थे, क्योंकि वहाँ पे करने के जेन के रूम में करने के लिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कर सकते, तो वो बाहर थे. व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 3, अब घड़ी में 3 बज चुके थे. एलिजाबेथ फेल्ट दैट शी मस्ट गो एंड वेरी अनविलिंगली सेड सो. अब एलिजाबेथ को लगता है 3 बज चुके थे, एलिजाबेथ को लगता है कि अब उसे जाना चाहिए, और वो जाना नहीं चाहती थी, और उसने बहुत ही अनविलिंगली ऐसा कहा. मिस बिंगले ऑफर्ड हर द कैरेज. मिस बिंगले ने उन्हें कैरेज ऑफर किया, एंड शी ओनली वांटेड अ लिटिल प्रेसिंग टू एक्सेप्ट इट. और जो एलिजाबेथ थी उन्हें बस थोड़ी सी प्रेसिंग चाहिए थी, थोड़ा सा वो चाहती थी कि थोड़ा सा प्रेस किया जाए उन्हें, तो वो कैरेज को एक्सेप्ट कर ले. When Jane testified such concern in parting with her, here you can see testified showed great reluctance to part with her. That means Jane was not comfortable with parting with her sister. So when Miss Bingley was obliged to convert the offer of the chase to an invitation to remain at Netherfield for the present. और जब जेन की कंडीशन देखती है कि वो अपनी सिस्टर से पार्ट नहीं होना चाहती है, दैट मीन्स वो चाहती है कि उसके सिस्टर उसके पास रहे, तो मिस बिंगले जो है वो मजबूर हो गई, और वो बहुत ही ऑब्लाइज्ड हुई कि वो एलिजाबेथ को वहाँ पे कैरेज ऑफर करने के बजाय उन्हें वहाँ पे रुकने का इनविटेशन दें. Elizabeth most thankfully consented, and a servant was dispatched to Longbourn to acquaint the family with her stay and bring back a supply of clothes. एलिजाबेथ रेडी हो जाती है वहाँ पे रुकने के लिए, और फिर वहाँ से एक सर्वेंट को भेजा जाता है जहाँ एलिजाबेथ रहती थी, लॉन्गबर्न, वहाँ पे उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कि एलिजाबेथ वहाँ पे स्टे करेंगी, और एलिजाबेथ के लिए कुछ कपड़ों को वहाँ से लेकर के वो एलिजाबेथ के पास आएगा, क्योंकि एलिजाबेथ रहने के पर्पज़ से नहीं आई थी, उनके पास कपड़े नहीं थे, तो वो सर्वेंट जा कर के इन्फॉर्म करने के साथ साथ उनके लिए कपड़े लेकर के आएगा. Okay students, in this way we have completed the story. In the next video we will go through the comprehension section of the story. Till then, keep watching the videos. If you have any problem, call and ask me. Have a good day.